A very good evening to everyone. We are in a webinar with ICSI, where today we are presenting curtain raiser for the paper presentation at 22nd International Annual Convention for FEAST. As we told you in our webinars for quite long now, that on 5th and 6th October 2023, we are organizing 22nd Annual Convention for FEAST, and FEAST is Forum of Educators and Skill Providers for Tourism. And in this 2-day webinar, in this particular webinar, we are talking about the 2 days convention and B2B trade meeting. So in this 2-day particular convention, on day 2, we will be holding papers, a research paper presentation wherein the educators, because FEAST is the forum of educators and skill providers for tourism industry as a whole, when we say. So in that, it includes, when we talk about tourism industry, it includes tourism, trade, travel trade business players, hospitality industry, even aviation industry. So one side we have the corporate trade experts, service facility providers, and one side we have the educators, those who are actually preparing the future workforce for this particular industry. So when we talk about the educators and the skill providers, there is a specific list of 12 topics that we have selected. And because just to understand that everyone should get a chance to present their paper, because we have many lists of that, many people wants to come to the convention, but we will be choosing 12 best paper presentations, and that particular paper presenters will come on 6th of October to present their research paper finally in the convention. So to select those 12 papers and the researchers and the presenters, we are holding a series of Zoom webinars along with which will be live on YouTube. Like you are today listening to me, you are watching this particular presentation. From tomorrow onwards, you will be seeing the people, those who are coming to present their papers. So we will be holding one particular convention. For this convention, we will be holding the webinar, a series of webinar from 15 to 27 September. Now, to just brief everyone of you, those who are listening to us, आप में से जितने लोग हमें सुन रहे हैं, as I always say that I should keep my language English as well as Hindi, so that मेरी आवाज, मेरी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग अंडरस्टैंड कर सके कॉन्सेप्ट को और हमारे साथ जुड़ सके. तो ये जो कन्वेंशन है और इसमें जो पेपर प्रेजेंटेशन है, ये पूरी कन्वेंशन किसके बारे में है, पेपर प्रेजेंटेशंस की क्या टॉपिक है और आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसे जानने के लिए आज का ये कर्टन रेजर रखा गया है. कल से हम प्रॉपर अपने स्पीकर्स के साथ, आपके रिसर्चर्स के साथ आपके साथ आएंगे. तो चलिए जल्दी से कुछ स्लाइड्स के माध्यम से जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में, इस पर्टिकुलर B2B मीट में और इस पर्टिकुलर पेपर प्रेजेंटेशन इवेंट में होने क्या जा रहा है और टॉपिक्स क्या है. सो सबसे पहले मैं आप सब भारतवासियों को ICSI की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार और एक भाईचारे, बंधुत्व की भावना के साथ हार्दिक शुभकामनाएं आज के स्वतंत्रता दिवस की. और हमारी तरफ से ये चंद पंक्तियां हमने अपने फ्लायर में डाली हैं कि कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ सबको गले लगाएं, हम स्वतंत्रता का पर्व मनाएं. और इसी के साथ हमेशा याद रखिए कि जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, आज का दिवस हम फ्रीडम के लिए मनाते हैं, स्वतंत्रता का दिवस है, तो स्वतंत्रता आज भी हमें चाहिए. स्वतंत्रता किस चीज की? स्वतंत्रता हमारे विचारों में, हमारी सोच में,
तो freedom in the mind, faith in the words, or pride in our soul. And that's why we, with all this conviction, we say Independence Day, and let's salute our lovely nation, beautiful nation, mother nation, Bharat, and we wish a very happy Independence Day to everyone. So you are here with us, and ICSI is a chamber for service industry as well as a link between overseas Indians, those who are living across the globe in different countries, different continents. And we all believe, ICSI believe, and the entire chamber and the entire group that is associated with ICSI, we all believe that Vasudha Kutumbakam. हमारा मानना ये है कि सर्विसेज में जुड़े रहने के साथ साथ हम जिस भी फील्ड से जुड़े हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, हमारा काम मानवता के लिए हो, मानवता की रक्षा के लिए हो, और किसी ना किसी तरह से जो हम ह्यूमन बींग्स हैं या वर्कफोर्स है वर्ल्ड की, ग्लोबल वर्कफोर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो कल्चरल शॉक से निकलकर एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और कैपेबिलिटी से भरपूर वर्कफोर्स की तरह, ना केवल भारत में, ना केवल एक पर्टिकुलर रीजन में, ना केवल लोकली, बल्कि ग्लोबली अपने आप को एक बेटर workforce की तरह prove कर सके, and specifically in service industry, and not just in service industry but when whatever industry they are, because skill ऐसी चीज है, चाहे आप services में हो, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, you really need it. और जितनी हार्ड स्किल्स की जरूरत है उतनी ही ज्यादा, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स की है, क्योंकि रिसर्च भी ये कहती है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स अगर 20% नीडेड है तो 80% आपको सक्सेस दिलाती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स. और हमारा भी ये मानना है, इसी के साथ हमने फिनिशिंग स्कूल की शुरुआत की थी वे बैक इन 1994, और पोस्ट पैंडेमिक हम बात करते हैं डिजिटल इंस्पिरेशन लैब की. एंड चाहे सर्विस इंडस्ट्री का जितना बड़ा दायरा है, जितने बड़े सेक्टर्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, पर कहीं ना कहीं सर्विसेज हर एक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है आज के समय में. और इसी तरह से चाहे एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री हासिल करना नहीं है, एजुकेशन का भी पैरामीटर बहुत बड़ा है, जिसमें स्किल्स भी आती हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी भी और बहुत सारी चीजें. तो ये एजुकेशन का दायरा भी बहुत बड़ा है. तो इसीलिए हम जब अम्ब्रेला की बात करते हैं, जब सर्विसेज की बात करते हैं, तो हमारा की फोकस बाकी सारे सर्विस सेक्टर्स पे तो है, बट मेन making education and skills relevant with NRIs and corporate, and that's what we are including in our digital inspiration lab. इस पे आप अगर और जानना चाहते हैं, हमने अपने कई सारे वेबिनार्स हमारी डिजिटल इंस्पिरेशन लैब पे किए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें वॉच कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट डिटेल्ड नॉलेज अबाउट डिजिटल इंस्पिरेशन लैब. बट फॉर टुडे हम बढ़ते हैं अपने पीस की कन्वेंशन की ओर. So something echoed, and I've just stopped it, and let's move together once again. Or moving ahead, now we will be talking on the feast. Now, first of all, because this is the 22nd annual convention of feast, that is Forum for Educators and Skill Providers for Tourism. It was established in 2001. That time it was known as Scholars for Tourism. But because ये जो आज का समय है, specifically post-pandemic, it is skills that are very much needed. So scholars to skills. But this has been established in 2001. And now क्यों ये establish हुई? आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, जब हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, एविएशन की बात करते हैं, तो देयर आर लॉट मेनी ऑर्गेनाइजेशन. बट वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो उस बिजनेस को संभालती हैं? चाहे आप ताई की जिक्र कर लीजिए, आयोटा का कर लीजिए, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कर लीजिए, एयर एविएशन में
DGCA, AAI, hotels में FHRAI, HAI, there are lot many associations. So everyone and all these associations that has been listed over here, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे across the world हो, they are to promote tourism industry and to generate business and to become a platform, a bridge between their demands and government. So everything is trade side, development हो रही है. But what about skills? But what about the tourism education? इवन अगर आप थोड़ा भी देखेंगे तो पोस्ट पैंडेमिक भी वोकेशनल एजुकेशन और स्पेसिफिक टूरिज्म एजुकेशन की सस्टेनेबिलिटी पे काफी जोर दिया गया है, और उसमें किस तरीके से इनोवेशन लाया जा सकता है उसके बारे में जोर दिया गया. पर उसको डिस्कस करने के लिए शायद ही कोई ऐसा कोलैबोरेशन हो, कोई ऐसी एसोसिएशन हो जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में एजुकेटर्स of tourism, hospitality and aviation, they can meet with the service providers, not just educators, but the skill providers, research scholars and the corporate also. So here comes feast. इसी उद्देश्य से feast को बनाया गया था. 2001 में इसका गठन किया गया था, और ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशन एंड स्किल्स पे जोर देती है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ाना है, सब कुछ होना है, डेवलपमेंट्स होनी है, पॉलिसीज बननी है, ग्रोथ होनी है, बट उसको चलाने के लिए साल दर साल कुछ ना कुछ नई वर्कफोर्स भी तो ऐड होनी है, स्किल्स भी तो ऐड होनी है. तो उसको ध्यान कौन रखेगा? उसका ध्यान रखने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ना केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चीजों को समझ सके. और जिसे हम एकेडमी और कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन कहते हैं ना, जो नॉर्मल एजुकेशन में भी जरूरी है, सो सेम वे इट शुड कम इन वोकेशनल एंड स्पेसिफिकली टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन. सो कलेक्टिवली इट विल गिव अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल. और इसी के लिए जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी और इसके साथ काफी मेंबर्स जुड़े, वी हैव lot many people associated with this. और आज भी हम आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से यही कहेंगे, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर if you want to become a member of this particular association forum, you are more than welcome. और it is not just कि सिर्फ ये एजुकेटर्स के लिए है. एजुकेटर्स आज के दायरे में, फॉर अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे पूछे, एजुकेटर सिर्फ वही इंसान नहीं है जो क्लासरूम में बैठ के स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देता है. मेरे हिसाब से एजुकेटर वो भी है. दो मे बी मेनी ऑफ यू will say what I'm saying or this is something very new, but ये मेरी एक अपनी क्रिएटिव सोच है जिसके तहत मैं ये मानती हूँ कि अगर आप एक कॉर्पोरेट हैं, अगर आप एक ट्रैवल ट्रेड बिजनेस में हैं, अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, अगर आप एक होटेलियर भी हैं, और क्यों आप भी एक एजुकेटर ही हैं. क्योंकि आप ये सोचिए, जब वो बच्चा, जब वो कैंडिडेट, जब वो स्टूडेंट पढ़ के आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके होटल में काम करने आता है, तो उसको क्या आप ट्रेनिंग नहीं दिलवाते? क्या आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते? हाँ, वो क्लासरूम का स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वो की स्किल्स सिखाना होता है, वो अंदाजे बयां आप अपने आप को किस तरीके से गेस्ट के साथ करें या कस्टमर के साथ करें, वो है. बट फिर भी आप उस समय तो वो एजुकेटर का ही काम कर रहे हैं ना. यू आर गिविंग देम एजुकेशन, यू आर गिविंग देम स्किल्स. तो आप स्किल प्रोवाइडर हैं, आप एजुकेटर हैं. तो दिस फोरम इज ओपन फॉर ऑल. अगर आप कॉर्पोरेट हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप टीचर हैं एजुकेशन फॉर टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन, अगर आप किसी तरह के रिसर्च स्कॉलर हैं, अगर आप ट्रेनर हैं, और अगर आप स्किल प्रोवाइडर हैं, तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए. हमारी वेबसाइट पे जाकर आप लिंक पे क्लिक कीजिए. एंड दिस मेंबरशिप इज कॉम्प्लीमेंट्री, देयर आर नो चार्जेस फॉर दिस. सो मूविंग अहेड नाउ, यहाँ से जब ये शुरुआत हुई और आते आते अब 2023 में हम इसका 22nd एनुअल इंटरनेशनल कन्वेंशन मना रहे हैं. ये कन्वेंशन होने जा रही है भुवनेश्वर, उड़ीसा में, इन होटल सैंडी टावर्स. और इस कन्वेंशन में, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ कन्वेंशन प्लस B2B मीटिंग फॉर ट्रैवल ट्रेड. तो
इसमें जुड़ने के में आप ना केवल एकेडमिक फील्ड में, रिसर्च में, स्किल्स में क्या नया हो रहा है, बिकॉज इसका जो मेन थीम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो टेक्नोलॉजी वाइज इस फील्ड में क्या नया हो रहा है, हम कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर सबके विचार विमर्श के थ्रू, सबके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, सबके इनपुट्स के थ्रू एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन अवेयरनेस, समथिंग मोर इंटेलेक्चुअल जनरेट करना चाहते हैं, रिजल्टेंट ये लाना चाहते हैं। और इसमें हमारे साथ हमारी कमेटी में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो कि इस कमेटी के, इस कन्वेंशन की कमेटी के इंचार्ज हैं। So you can see the structure of this particular thing, and you will definitely get benefit by joining this particular convention and B2B meet. Okay, so quickly telling what is there, because जैसे मैंने आपको बोला कि there are lot many plenary sessions will also be there. There are lot many intellectual sessions, panel discussions, networking आप इन 2 दिनों में देख पाएंगे। और जो की थीम है वो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही रखी है, विद दिस पर्टिकुलर ट्रैवल, टूरिज्म, hospitality and aviation. So again, clubbing them with academia and corporate. तो उसी से जुड़े हुए हमारे सेशंस हैं डे 1 पे। जिस तरीके से 9 o'clock रजिस्ट्रेशन के साथ हम शुरू करेंगे, and then the entire day will go on with the closing at 5 p.m. in the evening. दिन भर में 3 टेक्निकल सेशन रहेंगे ऑन द टॉपिक जो अभी अभी मैंने आपसे बात कही। और इसी के साथ नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डे जो 12 प्रेजेंटेशंस होंगी, वो 12 टॉपिक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इसी को अभी मैं थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करूंगी। इन ये 12 पेपर प्रेजेंटेशन के साथ कुछ और भी टेक्निकल राउंड्स होंगे रिलेटेड टू द थीम of the convention, international convention. And then we have the closing ceremony with awards, presentation, recognition, and felicitation, with business networking dinner and cultural program, where at Bhubaneswar, Odisha, Hotel Sandy Towers. Now, because this particular webinar, this particular video for today is just the curtain raiser part for the presentations that we are starting from tomorrow, the webinar series. So I am focusing more on कि आप में से जो भी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड है, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड है, वो किन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या कैसे दे सकते हैं और कैसे हमारे साथ आ सकते हैं. Rest we related to other aspects of the convention, we'll definitely make some other videos regarding that, but today is the curtain raiser part for the webinar series that is starting from tomorrow for the paper presentation. So जैसे मैंने आपसे कहा था 12 बेस्ट रिसर्च पेपर्स को हम सिलेक्ट करेंगे थ्रू द वेबिनार सीरीज, जो कि 16 से 27 ऑफ सितंबर तक चलेगी. और उसमें से जो बेस्ट 12 पेपर्स होंगे, दे विल देन पेपर्स अलोंग विद द रिसर्चर्स जिन्होंने वो लिखे हैं, जिन्होंने वो रिसर्च करी है, दे विल कम टू द कन्वेंशन इन भुवनेश्वर and they will then present their paper over there. Now, अब ये जो पेपर देने हैं, इसका कोई थीम, कोई कॉन्सेप्ट, जैसे ओवरऑल हमारी कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टूरिज्म एंड hospitality and aviation. So likewise paper presentation में we have selected 12 topics, जिनमें से आप कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करके उस पे आप अपनी रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं. बट क्योंकि जो आप कल से आएंगे, दैट विल बी ऑब्वियसली on the webinar and it will be online, so it will be through the PowerPoint. So we'll talk on that also, but the topics कौन-कौन से हैं जो selected किए गए हैं, जैसे आप अपनी screen पे देख रहे हैं, you can choose a topic with the theme rural tourism. You can choose the topic with the theme adventure tourism and niche tourism, Vision India 2047,
जिसमें आप niche tourism में you can take film, wellness, spiritual, because सब के सब तो हम एक साथ नहीं cover कर पाएंगे. Any of the niche you want to specifically present in your paper, you are more than welcome to select. So they were the 3 topics. Next 3 is tourism and MSME with startups, AI and future technology in tourism, hospitality and aviation, and then innovative digital marketing strategies for tourism and hospitality industry. And you can also choose innovative techniques to impart skills, competencies through technology in tourism and hospitality. We have also selected the topic with MICE tourism, that is meetings, incentives, conferences, and events. This is upcoming and growing segment of tourism in India. So MICE tourism and hospitality through AI and technology. And we have also incorporated in our topic, because this is a very recent topic, recent development, और आप में से अगर कोई भी ये topic लेके अपना कोई research present करना चाहता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. तो IITG और IITF है Incredible India Tour Guides and Incredible India Tourist Facilitators. So tourist guide and tourist facilitators जो कि government ने इनके लिए पूरा proper certificate और प्लान बनाया, तो उसको लेकर आप प्रॉपर अपनी रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं. ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स, IITG and IITF as a travel service providers for enhancing the level of tourist experiences and for repeat tourism. We have also given you the topic to be selected by you among these 3 also. So the domestic tourism, you can choose NEP 2020 and vocational education skills development, and you can also choose investment opportunities in tourism. So these are the 12 topics that you can choose from. Now I want to make you clear that see, there is no restriction and there are no set parameters के हमें ऐसा ही पैटर्न चाहिए और आपको ऐसा ही लेके आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप एजुकेटर्स हैं, आप स्किल प्रोवाइडर्स हैं, आप कॉर्पोरेट हैं, आप अपने फील्ड में माहिर हैं, तभी आप उस मुकाम पे हैं और तभी आप शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और करना चाहते हैं इस फील्ड में. सो वी थिंक कि एक लिबर्टी होनी चाहिए कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने की, अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो रिसर्च है अपनी तरह से प्रेजेंट करने की. बट उसमें हमने एक कुछ पैरामीटर्स आपको देने चाहे हैं कि जब हमसे अगर कोई पूछे या जो भी हमारे साथ दर्शक हमारे आज ये वीडियो देख रहे हैं, ये वेबिनार वॉच कर रहे हैं लाइव जो है यूट्यूब पे, तो अगर वो करना चाहते हैं और वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आप बता रहे हैं कि हमें पहले प्रेजेंट करना होगा और वी हैव टू कम ऑन द वेबिनार एंड वी हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन, तो हम उसमें क्या इंक्लूड करें. तो हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि जो आपने पूरा रिसर्च पेपर लिखा है 4 पेज का, 5 पेज का, आप वो स्क्रीन शेयर कीजिए. नो, दैट इज नॉट नीडेड. व्हाट वी आर नीडिंग इज हमें कोई डिटेल्ड आप देने की इस तरीके से कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो हमारा वेबिनार होगा इट विल बी ऑफ 1 hour फ्रॉम 8 PM to 9 PM. सो इन दैट आप की पॉइंट्स इन अ वेरी समराइज्ड मैनर, अगेन आई एम सेइंग कि जो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है स्ट्रिक्टली ये ही नहीं है कि आप यही प्रेजेंट कीजिए. इट इज योर चॉइस, it is your freedom and it is your liberty. The topic is yours, the concept is yours. We just want to understand what you want to say. What are your key research areas? What is your methodology? What are your results? And what are your key discussion points in that? And also you can, with the key discussion points, it includes the conclusion part also, and how you want to engage then your audience if you want to ask any questions. And obviously when you are coming with a presentation, it should be with pie charts, with visuals, with more of pictorial, so that it is well understandable. And obviously whenever we do a research, it should come with the source and references, so that should be. So these are the parameters being given by our chamber and the organizing team
and the key selecting team of all the papers, जो कि पूरे ये जो 16 तारीख से लेकर 27 सितंबर तक का ड्यूरेशन है, उस पर जितने भी आएंगे तो उसको लुक आफ्टर करने के लिए जो बैकएंड पे पूरे हमारी कमेटी है, टीम है जो सिलेक्ट करेगी, उनकी तरफ से एक जस्ट सजेस्टिव पैरामीटर्स हैं कि व्हेन यू आर कमिंग विद योर प्रेजेंटेशन यू शुड हैव दीज थिंग्स, बट अगेन इट इज नॉट लिमिटेड and you have a freedom because topic is yours, research is yours. So ये basic चीज है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जितना मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज ये टॉपिक अपने आप में इतने इंटरेस्टिंग है, टूरिज्म सब्जेक्ट अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है, एंड हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन, कि जब आप इसमें कुछ भी बताना चाहते हैं तो देयर इज लॉट मेनी टू एक्सप्लोर एंड टू अंडरस्टैंड. तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन दोज हु आर लिसनिंग, कि आप ना केवल इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अगर आप एजुकेटर हैं और आप रिसर्च में थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है और आप इंटरेस्टेड हैं टू प्रेजेंट, आप बिल्कुल इसको प्रेजेंट करिए, आप हमारे वेबिनार्स में आइए, बल्कि आप इस पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से देखिएगा. एंड यू कैन ऑल्सो गिव अस सजेशंस, यू कैन ऑल्सो गिव अस योर लाइकिंग्स, एंड यू कैन ऑल्सो गिव अस योर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. तो ये काफी इंटरेस्टिंग हमारी सीरीज होने वाली है, तो आप सब इसके साथ जरूर जुड़िए. और यही जो मैंने आपको किया है, इसी तरह से ये पूरा एक हमारे सोशल मीडिया पे भी आपको ये मिलेगा, और ये प्रमोशन है, ये एक सिंगल लीफलेट में सारे टॉपिक्स ऑलरेडी गिवन है विद ऑल द इंफॉर्मेशन. पर इसके बावजूद भी अगर आपने कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है, कोई आपका इनपुट है या यू वांट टू पार्टिसिपेट, तो आपकी स्क्रीन पे इस समय नंबर दिया गया है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर 734111220044, और यू कैन राइट टू अस एट feast@icsi.asia. So with that you can participate in that, in the paper presentation. और उसके साथ साथ क्योंकि it is B2B also, तो आपको during that convention exhibition stalls मिलेंगे, वहाँ पे corporate meetings हैं, तो the corporate will also get. And the most important part is कि in the convention आपकी participation और उससे related जो भी आपकी queries हैं, वो आप हमें कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट टू नो व्हाट इज देयर, एंड देयर इज नो हेजिटेशन टू बी आस्क्ड फॉर दैट. एंड आपका जो जैसे हमने बताया कि दैट पर्टिकुलर कन्वेंशन इज इन होटल सेंडी टावर, सो you can get the accommodation over there also, and all these information once you get make your mind to come and to be a part of this international convention, you're more than welcome to ask us on this given number, or you can write to us also, और हम आपके सभी तरह के answers about this international convention and B2B meet जरूर देना चाहेंगे. और जैसे मैंने आपको बताया कि कल से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, तो कल जो हमारे साथ स्पीकर्स आ रहे हैं, रिसर्चर्स आ रहे हैं जो अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे, उनका टॉपिक भी आपके सामने स्क्रीन पे है और उनके नाम भी, एंड दे आर फ्रॉम one is from C.V. Raman Global University, and other one is from Institute of Hotel Management, Ranjita Institute of Hotel Management, Mr. Das, and both are Das. So both the person they are coming, and with the topic domestic tourism, a gateway to economic multiplier, employment generation, startup and entrepreneurship. So this is a wonderful topic, and they are going to present they are going to, I will not say they are going to present their paper, but I will say that they are going to present their views, the key points, their objectives. So do listen to them and do join us tomorrow to watch Mr. Abhilash and Shabdrishi Das ji from Bhubaneswar, Odisha tomorrow. And likewise, हम आपको gradually and slowly अपने और सारे जो participants हैं उनका बताते रहेंगे in this particular series. So we'll starting tomorrow with the theme domestic tourism. So this is all about the
theme of paper presentations to be incorporated in the convention on day 2, that is 6th of October. और मैंने आपको उसका प्रोसीजर भी बताया कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें क्या होने वाला है, किन टॉपिक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन में, इस सीरीज में शामिल हो सकते हैं ऑनलाइन, और क्या आपको उसके लिए करना है। सो मुझे यही उम्मीद है कि जितने लोगों तक ये जानकारी गई होगी, और अगर आप इस फील्ड के साथ जुड़े हैं तो आप जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या रिसर्च में इंक्लिनेशन नहीं है और आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, तो कम से कम इसे सुनेंगे जरूर। तो हमारे व्यूअर्स जरूर बनेंगे यूट्यूब लाइव पे हर शाम 8 बजे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे इनफैक्ट, बिकॉज संडे को हमारा दूसरी सीरीज है, बट डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो वर्थ वॉचिंग। सो आप हमारे साथ जुड़िए और हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि whatever your mind can conceive and believe, it can achieve। आप जो जैसा चाहते हैं, जैसी आपकी सोच होती है, अपने आप परिस्थितियां वैसी बनती जाती है। तो क्यों नहीं हम पॉजिटिव सोच रखें, क्यों नहीं हम अच्छी सोच रखें, और क्यों नहीं क्रिएटिव सोच रखें। और हमेशा याद रखिएगा, कोई चीज गलत नहीं होती और कोई चीज सही नहीं होती, इट इज जस्ट कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कभी हिचकिचाइए मत, कभी घबराइए मत, और आपसे बेहतरीन इंसान तो कोई है ही नहीं जिंदगी में, हमेशा ये सोचिए। पर उसको पॉजिटिव वे में सोचिए, ये नहीं कि उसको फिर हर चीज को बैलेंस बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर चीज का ओवर बैलेंस जब हो जाता है तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल रहता है। तो उस समय आप ये मत कहिएगा कि हमें तो बोला गया था कि आप ऐसे समझिए कि आप ही सबसे बढ़िया है। तो आप ही सबसे बढ़िया है, ये मैं अभी फिर कह रही हूँ, बट देन आप ही सबसे बढ़िया है, पर बाकी सब भी हैं, क्योंकि हर एक इंसान तो यही सोचेगा ना कि मैं सबसे बढ़िया हूँ और मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर जितना अच्छा आप अपने बारे में सोच रहे हो, उतना ही अच्छा सबके बारे में सोचिए। तो ये बैलेंस जब हम बना के चलेंगे और जब ये बैलेंस बनाना सीख जाएंगे, तो बस लाइफ बहुत बढ़िया बन जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि कल हमारे साथ बहुत सारे लोग YouTube पे जुड़ेंगे और इसको सुनेंगे और इनमें अपना प्रॉपर इनपुट्स भी देंगे हमें। मैं आपको ये अपनी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ कि आपके बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे फीडबैक्स हमें मिलेंगे। और आप पार्टिसिपेट भी अगर करना चाहते हैं, आप खुद भी पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं इनमें से किसी टॉपिक पे, अगर आप इवन पेपर प्रेजेंट नहीं, आपके पास की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप डिस्कस करना चाहते हैं, इवन देन यू आर मोर देन वेलकम। इट इज अबाउट कि आपके पास कुछ क्रिएटिव, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट है टू शेयर, यू आर मोर देन वेलकम। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। और आप उसके लिए हमें जो नंबर्स आपको दिए गए, आप यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। और इसके साथ आज हमने अपना 2078 वेबिनार कंप्लीट किया है। जितने पुराने वेबिनार्स हैं अलग अलग टॉपिक्स पे जो करे गए हैं, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड विद एजुकेशन, स्किल्स, टूरिज्म एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन, एंड इवन कोर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और इवन हमारी जो एक स्पेशल सीरीज है दैट वी डू एवरी संडे मॉर्निंग, वेयर इन वैल्यू एजुकेशन पे भी बात होती है, नॉर्मल एजुकेशन से थोड़ा हट के। तो ये सब चीजें आप हमारे YouTube चैनल में जाकर, हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं, ये वेबिनार्स हैं जो लाइव थे, वो आप हमारे लाइव चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आपको पसंद आए तो आप उन्हें जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Or with this, I'm signing out for today, and we'll be meeting tomorrow, same time at 8 p.m. in the evening, Indian time. And till then, God bless all of you. Take care of yourself. And once again, a very happy Independence Day. आपको स्वतंत्रता दिवस